Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, I explain you session number 1 of chapter number 7, saving our resources, right? In today's session number 2, I am going to explain you about natural resources, then after conserving resources, then after forest, then after water, and last one is soil. I am going to explain all these topics in today's session, right? But before I start explanation these topics, let me revise all the things about last session. मैंने आपको last session में क्या कराया था? I explained you vocabulary words and meanings, right? तो फटाफट देख लेते हैं. First of all, vocabulary words. Number 1, natural. Number 2, renewable. Number 3, transport. Number 5, chemicals. Number 7, non-renewable. Number 7, reduce. Number 8, reuse. Number 9, recycle. Number 10, garbage. Number 11, fossil. Number 12, fuel. Number 13, metal. Number 14, dispose. And number 15, industries, right? Now, meanings. Number 1, natural resources. Materials or substances found in nature that can be useful to us are called natural resources. Number 2, forest. Forests are areas with a large number of trees and wild animals. Number 3, renewable resources. Resources that can be renewed in a short span of time by natural processes are called renewable resources. Number 4, non-renewable resources. Resources that cannot be renewed in a short span of time by natural processes are called non-renewable resources. Number 5, pottery. Making things out of fired clay. Done. Now let's begin today's session. Topic number 1, natural resources. As I told you earlier, there are two types of natural resources. There are two types of resources, right? One is renewable resources and another one is non-renewable resources. Renewable resources मतलब हम शॉर्ट टाइम में उसको रिन्यू कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो भी नेचुरल प्रोसेस से नहीं कर सकते. रिन्यूएबल में हम नेचुरल प्रोसेस से उसको रिन्यू कर सकते हैं, राइट? चलो फटाफट. नेचुरल रिसोर्सेज. Materials or substances found in nature that can be useful to us are called natural resources. Forest, water, air, soil, minerals and fossil fuels are examples of natural resources. Can you give me some examples of natural resources जो हमें नेचर में से मिलते हैं? Yes, नेचर में से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स, राइट? ये एक ऐसी चीज है जो हमें नेचुरली मिली है, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल यानी कि हम लोगों ने बनाई है, राइट? तो ये सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज. जब हमारा यहाँ पे ह्यूमन पे लिविंग थिंग्स आने लगे, उससे पहले से ये सारी की सारी चीजें नेचुरली ही यहाँ पे थी, राइट? तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ नेचुरल रिसोर्सेज. Human beings depend on natural resources for their livelihood and survival. Kids, we living things all dependent on these all natural resources. क्यों? मतलब हम पूरे के पूरे natural resources के ऊपर ही dependent हैं. हम breathe क्या करते हैं? Air, right? हम रहते कहाँ पे? हमारे एटमॉस्फेयर में. सॉइल की नीड होती है सारे के सारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. फॉरेस्ट है तभी वाइल्ड एनिमल्स है, तभी ये सारी की सारी मतलब प्रोसेस होती है. मतलब ट्रीज है तभी हमें प्योर एयर मिलती है, रेन लाने में हेल्प होती है, राइट? तो ये सारी की सारी नेचुरल चीजों से ही हमारी लाइवलीहुड मतलब हम यहाँ पे जिंदा रह पा रहे हैं, राइट? Plants and animals also depend on resources such as soil, water and air to survive. Even we living things need all these natural resources, right? As saying like that, plants and animals also need this kind of natural resources. उन लोगों को भी इसकी जरूरत होती है, वही तभी वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं जब उन लोगों के पास ये सारी की सारी चीजें हैं तब, राइट? नाउ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Resources that can be renewed in a short span of time by natural process are called renewable resources. Renewable resources ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको हम वापस से बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, राइट? वो भी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में. जैसे कि प्लांट्स को हम तोड़ चुके हैं कोई भी चीज बनाने के लिए, तो
हम उसको वापस से ग्रो कर सकते हैं। देन आफ्टर एयर, तो प्योर एयर भी हमें प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो करने से, मेंटेन करने से वो भी मिलता रहेगा, राइट। सॉइल में, सॉइल है तो सॉइल को मेंटेन करेंगे तो भी हम इसको पूरी तरह से रिन्यू कर पाएंगे, राइट। तो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल आर वाटर एंड एयर। इवन वाटर को भी हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वाटर साइकिल जो होती है वो हमारे नेचर में ही होती है, राइट। तो प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो करेंगे हम लोग तो हमारी वाटर साइकिल में भी इफेक्ट होगी, राइट। तो एयर प्लांट्स अगर अच्छी तरह से ग्रो करेंगे तो एयर में भी मिलेगा। जो प्लांट्स जो होते हैं कौन क्या ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो उससे भी एयर भी प्योर होती है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। However, when we pollute them or use them faster than they are renewed, they become unavailable for our use. सोचो कि हम जितना प्रोडक्शन होता है कोई भी चीज का, उससे ज्यादा हम कोई भी चीज को यूज करेंगे तो क्या होगा, बट नेचुरली वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो जितना जो होता है उतना ही हमें उसका यूज करना चाहिए। मतलब जितनी अवेलेबिलिटी होती है उससे ज्यादा करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी नीड तो रहेगी पर वो हमें मिलेगी नहीं चीज। तो एयर वाटर का सेम वही है कि हमें जितना है उससे ज्यादा हम उसका यूज कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक टाइम पे ये चीजें होंगी नहीं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एक लिमिटेडली ये सारी चीजों का यूज करना है। वाटर जितनी हमें नीड हो उतना ही यूज करना है, एक्स्ट्रा यूज करना नहीं। while we are washing clothes, while we are doing brush, at that time we are not supposed to on our tap। हमें हमारे टैप को ऑन रखना चाहिए नहीं, we are supposed to close the tap। हमें हमारे टैप को बंद कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम बहुत सारे लोग ये फॉलो करने लगे तो हम एनवायरमेंट में से हम वाटर को बचा सकते हैं, राइट। Resources that cannot be renewed in a short span of time by natural processes are called non-renewable resources। Example are fossil fuels। ऐसे रिसोर्सेज जो शॉर्ट टाइम में रिन्यू नहीं हो सकते, वो भी नेचुरल प्रोसेस से रिन्यू नहीं हो सकते, तो उस टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। का नाम ही इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि फोसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी की सारी चीजें आती है। तो ऐसी चीजें हैं, हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए। हम जैसे बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं लॉन्ग ड्राइव में, तो वो इट्स काइंड ऑफ वेस्टिंग, दैट वी आर वेस्टिंग आवर पेट्रोल, वेस्ट ही कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। अगर एक से दो जन हम लोग को जाने तो हम हमारी पर्सनल कार निकाल रहे, तो उससे बेटर है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका यूज करें, तो एक ही पेट्रोल से हम बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये इतनी चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो हम एनवायरनमेंट को बहुत ही प्रोटेक्ट हो पाएगा एनवायरनमेंट में। अदरवाइज एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आने वाले जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि क्या नॉन रिन्यूएबल थिंग्स है थी, राइट। नाउ नेक्स्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज है तो उसको बट नेचुरल में कंजर्व भी करना पड़ेगा, राइट। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लैंड इज क्लियर्ड टू बिल्ड मोर हाउसेज, फॉरेस्ट आर आल्सो क्लियर्ड टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। जैसे जैसे हमारे लिविंग थिंग्स का सब कुछ ग्रो हो रहा है, मतलब हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वी नीड मोर स्पेस टू लिव। हमें रहने के लिए बहुत जगह चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके हम यहाँ पे घर बना रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके फार्म भी बना रहे हैं, क्रॉप्स भी उतने ग्रो करेंगे, राइट। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो होता है एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है, राइट। इवन हम लैंड पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, लैंड को मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करके हम लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बट नेचुरल लैंड को भी इफेक्ट होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें बचा लेनी चाहिए, राइट। टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स, मोर इंडस्ट्रीज आर सेट अप व्हिच use even more raw materials to produce goods such as cars, TV and ACs. A lot of water and minerals are used in producing these goods. Fossil fuels are used to transport them to our houses, and finally electricity is required to use these goods. Kids, जैसे जैसे हम लोगों की
नीड पॉपुलेशन बढ़ता है उतने लोग बढ़ते हैं, वहां से हमारी नीड्स बढ़ती है, राइट। तो ये सारी चीजें बढ़ती ही जाती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ती है, तब हमारी नीड्स बढ़ती है तो क्या कौन कौन सी नीड्स बढ़ती है, जैसे कि हमारे नीड्स में टीवी लेना होता है, एसी लेना होता है, बहुत सारे गुड्स लेने होते हैं, फर्नीचर लेना होता है, बहुत सारी चीजों की नीड्स बढ़ती है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें बनाने के लिए फैक्ट्रीज की भी नीड होती है, राइट। तो जितनी चीज बढ़ती है उतनी फैक्ट्रीज और ये सब कुछ बढ़ता ही जाता है, राइट। तो उससे क्या होगा कि हम हमारे एनवायरनमेंट को ही इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज और ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट या तो फिर कोई भी ऐसा ग्रीनरी वाला एरिया उसको कट करके लैंड में कन्वर्ट करके उनमें से हम लोग फैक्ट्रीज बनाते हैं। फैक्ट्रीज बना ली, उन केमिकल वाली फैक्ट्री है तो वहाँ से हम कोई भी कचरा होता है केमिकल वाला, या तो फिर हम सीधा पानी में भेज देते, पानी में डाल देते, या तो फिर लैंड में डाल देते। तो कितना पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम हमारे एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। तो ये अगर हम कोई भी घर की चीज भी ले रहे हैं, नीड्स बढ़ती है, तो हमें ट्रांसपोर्ट से ही लेनी पड़ेगी, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पे हमें हम लोगों को भेजनी होती है तो आएगी, तो वहां पे भी फ्यूल की नीड होगी। मतलब सोचो ये एक जगह थोड़ी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सारी सिचुएशन है। तो ये यही थिंग्स जो है हम वो फॉलो भी करते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। Resources are thus being used at a rate faster than they can be naturally renewed. This has resulted in the depletion of resources. Thus, there is a need to protect or conserve resources. जितनी तेजी से हमारी नीड्स बढ़ रही है, हम लोग कर रहे हैं ये सारा मैन्युफैक्चर, ये सब कुछ हम ले रहे हैं, उससे ज्यादा उससे भी फास्ट क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें यूज होती जा रही है। तो जितना टाइम हमें बनाने में लगता है उससे पहले तो हम लोग उस चीज को हम लोग क्या करते हैं कि उसको यूज कर डालते हैं, राइट। हम उसको यूज कर डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा है कि जितनी नीड हमें होती है उतना हमें मिल तो जाता था, बट एक टाइम में वो भी हमें नहीं मिलेगा। बिकॉज जितना नेचुरली कोई भी रिन्यूएबल चीज को बनाने में जितना टाइम लगता है उससे पहले तो हम खत्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। This has result in the depletion of resources, मतलब रिसोर्सेज में डिप्लेशन आ सकता है, मतलब उसकी अछत हो सकती है, राइट। तो मतलब एक टाइम पे हमें कुछ भी मिलेगा ही नहीं, तो हमें ये सारी चीजों का अच्छी तरह से ध्यान से इसका यूज करना चाहिए, राइट। नाउ फॉरेस्ट Forests are areas with a large number of trees and wild animals. Forests are an important resource because of the following. Forest का मीनिंग क्या है? बहुत large एरिया होता है, it is full of trees and animals, right? एक बड़ा एरिया होता है और वहाँ पे बहुत सारे trees होते हैं और animals होते हैं, right? Forests are an important resource because of the following. Forest एक बहुत ही important resource है, बिकॉज फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर मतलब वुड, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, राइट। देन आफ्टर फायर करने का वुड, देन आफ्टर रबर, देन पेपर भी हम ट्रीज का जो ट्रंक कट करते हैं उनमें से बनते हैं, राइट। देन आफ्टर इवन मेडिसिन ऐसी बहुत सारी होती है कि मेडिसिन, सोप, ये बहुत सारी चीजें जो कहाँ से बनती है, सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट के मटेरियल से ही बनती है, राइट। आफ्टर हनी, अगर ट्रीज में होगी, ट्रीज में बीज होगी, वो अपना घर बनाएगी हनी से फुल ऑफ, राइट, तभी हमें हनी मिलेगा। गम्स एंड रेसिन्स, इवन रेसिन्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो ये रेसिन्स मतलब किशमिश, खबर किस लोगों ने, मतलब ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। Trees growing in forest absorb carbon dioxide, give out oxygen and help purify the air. This is why forests are called the lungs of the earth. The other name of forest is lungs of the earth. Earth का lungs है सारे के सारे forest, क्यों? Because वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं। हम लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। तो वो धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को प्योरीफाई करता है, राइट।
दैट्स व्हाई उसको हम क्या बोलेंगे, लंग्स ऑफ द अर्थ। कि हमारे लंग्स का क्या काम होता है कि एयर को अच्छी तरह से हमारे पास पहुंचाना, प्योरीफाई करके, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से उसको भी लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, राइट। Forests are also home to many wild animals. Trees provide food and shelter to animals. If forests are destroyed, wild animals will lose their food and habitat and eventually die out. किड्स, हमारे घर कितना प्यारा होता है कि नहीं होता है? कोई हमारे घर को तोड़ देते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, हम घर के बिना रह जाते हैं, राइट। तो ऐसा हम कभी तो करते नहीं है। तो हम वाइल्ड एनिमल्स जो है, मतलब ये जो एनिमल्स है उसका घर कौन सा है, फॉरेस्ट है। हम उसको कट करके उसको घर से बाहर निकालने जैसा हम कर देते हैं, राइट। उसका कोई घर ही नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को मेंटेन करना है, उसको तोड़ना नहीं है, उसमें से कोई भी चीज को निकालना नहीं है, उसको ऐसे ही मेंटेन करना है एज अ नेचुरल रिसोर्स, राइट। उसकी टोटली फूड हैबिट कुछ भी हो, वो टोटली फॉरेस्ट से जुड़ी होती है, राइट। हम घर पे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, ये सारी चीजें घर में ही करते हैं। तो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, उसका वही घर है, तो ये सारी चीजें वो वहीं पे करते हैं। तो इसका मतलब हम ये तोड़ मतलब ट्रीज को कट करते तो ये सारी की सारी सिचुएशन हम करते हैं, तो क्या होगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो वो हमें बिल्कुल भी करना नहीं है। Trees absorb rainwater through their roots and slowly release this water into rivers and streams. Thus, forests are important for water conservation. ट्रीज के रूट्स, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, उसके रूट्स बहुत डेप्थ में होते हैं, राइट। तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। रेन वाटर का क्या होता है कि वो तो कहीं पे भी एक्स्ट्रा हो जाता है, उससे क्या होता है कि वो जो रूट्स होते हैं उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, और धीरे धीरे वो पानी को रिलीज करता है। कहीं पे भी कोई भी रिवर हो या फिर कोई भी छोटा सा पॉन्ड हो, कहीं पे भी वो पानी को रिलीज करता है। तो ट्रीज एक के लिए नहीं, वो बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो हमें वेजिटेबल्स देता है, फ्रूट्स देता है, इवन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रूट्स में पानी को एब्जॉर्ब करके रिलीज करने में हमारी हेल्प करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, मतलब अनकाउंटेबल थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजों में ट्रीज हमारी हेल्प करता है। तो वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, राइट। नाउ फॉरेस्ट एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। वो हमें रबर प्रोवाइड करता है, हनी प्रोवाइड करता है, वाइल्ड एनिमल्स का शेल्टर, मतलब वो वाइल्ड एनिमल्स को घर भी प्रोवाइड करता है, देन आफ्टर मेडिसिन प्रोवाइड करता है, पेपर प्रोवाइड करता है, रेसिन्स सेक्रेटेड फ्रॉम बाग, रेसिन भी हमें प्रोवाइड करता है, वो जो बाग में से हमें जो मिलता है उसमें से, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। नाउ फॉरेस्ट, कंजर्विंग फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करेंगे वो भी हमें देखना होगा, राइट। A few ways to conserve forest are as follows: prevent trees from getting cut down on a large scale, कि हमें बहुत लार्ज स्केल में ट्रीज अगर कट हो रहे हैं तो उसको हमें बचाना है, बिल्कुल कट नहीं होने देना है। Mature trees should be specially protected as they are home to a large number of birds and other animals. बहुत मैच्योर ट्रीज मतलब बहुत ही पुराने वाले बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनको तो बहुत मतलब बचा के ही रखना चाहिए। वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का घर होता है, राइट। बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे उसके नेस्ट बना के रहते हैं। पर बूशी ट्री है तो बहुत सारे बर्ड्स होंगे, तो उसको भी कट होने से बचाना है। देन आफ्टर अवॉइड वेस्टिंग ऑफ पेपर, यू रीयूज पेपर, हमें पेपर का कम से कम यूज करना है, या तो फिर हमें पेपर का रीयूज भी करना है, राइट। कोई भी रीयूज कर सकते पेपर का। अगर वेस्टेज पेपर बचे तो उसको हमें बाइंडिंग करवा के यूज करना है, मतलब पेपर को कभी भी कहीं पे भी वेस्ट होने देना नहीं है। और रीयूज करेंगे तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है कि कोई भी चीज रीयूज करने से उसका मतलब जो हम नहीं खरीदने वाले उससे तो बेनिफिट ही होगा। ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे तो नेचर में भी आएगा कि जब भी परचेज कोई काम करेगा तो प्रोडक्शन भी उसका काम होगा, राइट। तो उससे हम हमारे एनवायरमेंट को इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। देन आफ्टर प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम बीइंग हंटेड फॉर लेदर, फर, नेल्स और हॉर्न्स, मतलब ऐसी बहुत सारी आइवोरी मतलब ऐसी चीजें जो एनिमल्स से मिलती है, जैसे कि लेदर, एनिमल्स के नेल्स, एनिमल्स के टीथ, उसकी ज्वेलरी बना के पहनते हैं। लेदर है तो लेदर के शूज, लेदर के बेल्ट, लेदर के जैकेट,
ये सारी की सारी चीजें जो प्योर होती है वो हमें एनिमल से मिलती है, राइट। और ऐसे भी लोग होते हैं जो एनिमल्स को हंट कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये सारी चीजों को स्टॉप कराना और एनिमल्स को हंट होने से भी बचाना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट फॉरेस्ट, राइट। देन लास्ट टॉपिक, वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्स है, राइट। वी नीड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। हम गंदा पानी पी के सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। वी नीड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। हमें फ्रेश वाटर पीना है सर्वाइव करने के लिए। अगर गंदा पानी पिएंगे तो हमें क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, डिसीजेज आ जाएगी बॉडी में, राइट। रिवर्स, लेक्स एंड माउंटेन आइस कैप्स कंटेन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ऑलवेज, जो बहता हुआ पानी होता है वो फ्रेश होता है। स्टक हुआ वाटर, स्टैग्नेंट वाटर होता है, मतलब एक जगह पे भरा पड़ा वाटर होता है वो खराब होता है, मतलब उसमें से बदबू आती है, उसमें एल्गे हो गई होती है, राइट। तो वो पानी नहीं पीना चाहिए। प्योर वाटर कहाँ होता है? रिवर्स, लेक्स, माउंटेन, आइस कैप्स। माउंटेन जो होते हैं उसमें आइस से भरा पड़ा होता है, उसमें मेल्ट होकर धीरे धीरे पानी आता है, वो भी एक फ्रेश वाटर होता है, राइट। तो ये सारे के सारे फ्रेश वाटर होते हैं। These are our only source of drinking water. A few uses of water are as follows. तो ये सारे के सारी चीजों से ही हम फ्रेश वाटर मिलता है, वही पानी हमें पीना चाहिए। Now we use water for drinking, washing, cooking, cleaning and in transport, industries and agriculture. पानी के बिना कोई भी चीज पॉसिबल है नहीं। हम पानी को कौन कौन सी, मतलब किस किस टाइप, मतलब कौन कौन सी जगह पे यूज करते हैं? कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बाथिंग के लिए, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर फ्रॉम विच वी नीड वाटर, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें वाटर की नीड होती है। एक भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो वाटर के बिना होती है। ओशियंस and rivers are home to a large number of fish and aquatic plants. Many of these fish and plants form an important part of our food. सारे के सारे ओशंस एंड रिवर्स को बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उस एनिमल्स का घर है। इवन एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब पानी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो पानी के अंदर होती है। किसी एनिमल्स का होम होता है या तो फिर कोई भी प्लांट्स का होम होता है वहां पे जो ग्रो होते हैं। और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो एनिमल्स जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खाते भी है। बहुत सारे लोगों का वो फूड भी होता है, राइट। तो हमें पानी का यूज जो कम से कम करना चाहिए और वहाँ पे भी कोई भी पॉइजनस या केमिकल्स वाली चीज को उसमें स्पिल होने देना नहीं है। नाउ कंजर्विंग वाटर। वाटर को कैसे बचाना है? डू नॉट वेस्ट वाटर। सबसे पहले हमें वाटर को कभी भी वेस्ट करना चाहिए नहीं। यूज वाटर फ्रॉम अ बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर। टर्न ऑफ टैप्स व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। सबसे पहले हमें बाथिंग, नहाना है तो क्या करना है? हमें क्या करना है? बकेट में पानी लेना है, वहां पे नहाना है। कभी भी शावर का यूज नहीं करना है क्योंकि शावर में बहुत ज्यादा पानी चला जाता है। और जब भी हम क्लोथ को वॉश करते हैं या तो फिर ब्रश करते हैं वहां तक हम क्या करते हैं? टैप को खुला रखते हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा करना चाहिए नहीं। टैप बंद करके सारी की सारी चीजों का काम करना है। देन आफ्टर एंश्योर लीकिंग वाटर पाइप्स आर फिक्स्ड। कभी कभी ऐसा होता है घर पे वाटर पाइप जो होती है वो लीक हो जाता है, राइट। तो हमें उसको रिपेयर करवा के रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो जा रहा है पानी की कहाँ पे कमी है तो वापस भर लेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उनको हमें फिक्स करना है, राइट। Have more open spaces for rainwater to sip into the ground. This helps to recharge the groundwater. बड़ी बड़ी स्पेसेस खाली रखनी चाहिए। जब भी रेन आए तो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर से वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाए और थ्रू आउट द ईयर हमें ग्राउंड वाटर मिलता रहे। तो ये सारी की सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा लेंगे। कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट इन टैंक्स। मतलब हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना है और टैंक में स्टोर करना है। यूज दीज वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। ये सारे के सारे चीजों को हम वो पानी को किस में यूज कर सकते हैं? हम प्लांट्स को दे सकते हैं, हम हमारे बाथिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मतलब कोई भी यूटेंसिल्स को वॉश करना, क्लोथ्स को वॉश करना, इवन प्लांट्स को वाटर देना, वो वाटर को हम ये सारी की सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। Plastic bags thrown in water bodies harm the organisms
लिविंग इन वाटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे कि हमें प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ऐसा कोई भी कचरा हो जिसको हमें वाटर बॉडीज में बिल्कुल भी थ्रो करना चाहिए नहीं। ऐसा करेंगे तो पानी पॉल्यूट होगा, पानी पॉल्यूट होगा तो बट नेचुरल घूम फिर के हमारे पास ही पॉल्यूशन आएगा, वही पानी हम पीने वाले हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ लास्ट टॉपिक अबाउट सॉइल। सॉइल मतलब जो हम क्ले, मिट्टी जो होता है, राइट। Soil is formed from rocks by natural processes such as the action of wind or running water. Soil कहाँ से बनती है? Soil हमें नेचर से ही मिलती है, राइट। रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर आता है एयर का, फिर पानी, अगर रेनी सीजन है तो उसके ऊपर पानी भी गिरता रहता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें कंटिन्यूअसली कोई भी रॉक पे पड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, राइट। It takes thousands of years to form a tiny amount of small soil. Soil is an important natural resource because मतलब ये जो soil form होने में thousands of years लगते हैं। ये कई नेचुरल प्रोसेस है तो एक दिन में नहीं बन जाते, तो थोड़ी सी soil form होने में thousands of years लगते हैं, राइट। तो हमें उसको भी कंजर्व करना चाहिए। Soil is important for plants and trees to grow. Soil एक बहुत ही important है जो हमारे सारे के सारे प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करने के लिए, राइट। ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो क्यों करते हैं हम लोग? वो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही जरूरी है। ट्रीज और प्लांट्स हम ग्रो करेंगे तभी हमें फूड मिलेगा, बहुत सारे एनिमल्स को फूड मिलेगा और किसी का घर भी बन सकता है, राइट। ये सारी की सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। Soil also supports a large number of insects and small animals that live in, as I told you, कि soil जो है, soil के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं तो उसका भी घर होता है, राइट। वो हमें ध्यान रखना है। We need soil for agriculture, poultry and making homes. इवन हमें soil की कहाँ कहाँ जरूरत होती है? एग्रीकल्चर में भी जरूरत होती है। इवन पोट्री मतलब कोई भी क्ले की चीज, soil से बनी हुई थी ना चीज, क्ले के बर्तन होते, पॉट्स होते, तो इसमें भी soil की जरूरत होती है। इवन मेकिंग होम्स, कच्चे घर होते हैं, उसको बनाने के लिए भी हमें जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है। तो हमें ये सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब सॉइल को कैसे बचाना है? Dispose of the waste properly. Do not throw waste of or harmful chemicals on the ground. सोचो कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जो होती है उसको कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं तो उससे हम सॉइल को खराब कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज को इजीली गंदी जगह पर डिस्पोज करना चाहिए नहीं। लैंड पे के सॉइल पे कहीं पे भी डिस्पोज करना चाहिए नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। Plant more trees. Root of plants hold the soil firmly together and do not allow it to be washed away from with water. मतलब सॉइल के जो रूट्स जो होते हैं ना, वो कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं? वहाँ नीचे तक, राइट। वो सॉइल को पकड़ के, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं ना। तो हमें जितना हो सके उतने ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे तो सॉइल फ्लो होगी नहीं और हमें बहुत सारे ट्रीजों को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगी। Step farming should be practiced on hill slopes. Steps reduce the speed of the running water. As the water stays on the steps, it gets absorbed by the roots of plants or seeps through the soil. Step farming. Steps मतलब પગથિયું હોય ને એવી રીતે માઉન્ટેનમાં steps farming થાય કે मतलब अगर रनिंग वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू अगर सॉइल उड़ रही है, जा रही है, तो स्टेप फार्मिंग में क्या होगा कि आगे जो भी सॉइल आएगा सब कुछ जाएगा वो स्टेप में ही एक जगह पे जाएगा। तो सॉइल कहीं भी जा पाएगी नहीं और हमारी सॉइल हमारे पास ही रहेगी, राइट। तो स्टेप फार्मिंग हम जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। In the plains, fast winds blow away the soil. Tall trees should be planted in a row to reduce the speed of the wind. These prevent soil from being blown away by the wind. मतलब जो हम कोई भी फ्लैट सरफेस में कुछ भी ग्रो करते हैं तो क्या होता है, वहां से सॉइल इजीली उड़ जाती है, राइट। तो हमें क्या करना है कि जितना हो सके उतना हमें स्लोली टेरेस फार्मिंग करना है और उसको रिड्यूस करना है। ये जो विंड्स के थ्रू
सारी की सारी सॉइल चली जाती है, राइट। विंड ब्लो होता है, कभी हम बहुत प्लेन ग्राउंड में होता है, विंड ब्लो होता है, तब देखना हमारे आंख में कचरा जाता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारे बाल, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है। तो हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। Done, kids? So in today's session, what I explained you about natural resources, then after conserving resources, then after forest, then after water, and last one is soil. I hope so you understand all these topics very well. Now in next session, I am going to explain you about fossil fuels, then after the 3 R's of conservation, right? So I am going to explain you all the things in next session. So kids, I have shared a PDF with you. I hope so you like my video and do it homework by your own self, okay? So chalo kids, till next session kids, bye.